So hello everyone. We are going to start with SP today. Today is the first day of SP lecture. So before starting, I would like to show you a video. उससे थोड़ा हमको हेल्प मिलेगा. तो एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ. आपको इसको ध्यान से देखना है. ये हमें बीके में, ओसी में, एसपी में सब जगह पे काम आएगा. तो प्लीज वॉच इट केयरफुली और बीच में कोई भी बोलेगा नहीं. तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ओके, ठीक है. तो वी विल प्ले. Our story begins. He is headed for the old fishing pole. Uh-oh. Too bad. Freddie had helped his mother make soft soap to sell to their friends and neighbors. Shucks, if I didn't have to work. Think of all the fun I could be having. Gee. Freddie tries to figure out an easier and quicker way to make soap. He goes to work to make his dreams of fun come true. After years of working night and day, Freddie's experiments bring success. Soap in cakes. Pretty soon, word gets around to the housewives who want shorter, easier wash days and cleaner clothes. Freddie's soap is just what they need. He invests his profits in larger quarters and new equipment to make enough soap to satisfy the demand. Finally, his dreams come true. Time off for fun on Saturday. Hey, Freddie, the guy can fish anytime. It's what he dreams to do. Goodbye, Freddie. Hopelessly in love, he wants to make good in a big way. So, back to work. As the company grows, it brings the railroad and other businesses to town. Increased property taxes from the thriving community help to build better schools. तो वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, वॉइस वगैरह प्रॉपर है. आयुष को आई थिंक थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है. वीडियो इज नॉट प्रॉपर, वॉइस इज ब्रेकिंग. व्हाट अबाउट ऑल ऑफ यू? Libraries, playgrounds, and waterworks. Taxes even help to provide more and better governmental services, such as police protection. Before long, Freddie becomes a successful businessman. And, incidentally, a successful husband and father. Butsy's expanding company creates all kinds of jobs that never existed before. To increase production and sales, Butsy builds up a strong labor management team. Each year, he invests a portion of his profits in research to develop better soap that can be made to sell at lower prices. The Butsy company continues to grow with the years because it makes a good soap, which in competition with others sells at a fair price. Competition forces each manufacturer to improve his product, to sell it for less, and to give the consumer more
Finally, he gets so many orders, he realizes that one factory simply can't meet the demand. His profit motive starts sparking to figure out a way to increase production. He forms a corporation and issues stock to raise money to build factories from coast to coast. But these employees have faith in his management and back him with their savings. Banks loan depositors money to help finance the expansion program. Insurance companies loan the funds of their policyholders to help build the factory. तो अभी तक हम इसमें देख रहे थे कि एक छोटा सा लड़का जिसकी मम्मी उसको काम पे लगा देती है हर बार, उस टाइम पे जो केक सोप नहीं होता था तो लिक्विड सोप से काम चलाया जाता था। तो उसको ऐसा आइडिया आता है क्योंकि उसको ये सब काम करना नहीं रहता है, तो सोचता है कि ऐसा कुछ हो कि मुझे बार बार सोप बनाना ना पड़े। तो वो उसमें रिसर्च करता है, रिसर्च करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि केक सोप बनाया जा सकता है और बनाना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस डेवलप होता है और हमने देखा ऑल ओवर जो विलेज है वो वहां पर नए नए फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करता है। अब उसका बिजनेस इतना चलता है कि सिर्फ उतने से फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अभी जो करंट सिचुएशन है वो और पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे पैसे जमा करने की कोशिश में वो क्या करता है, अपने ही एम्प्लॉय से लोन लेता है, फिर बैंक से लोन लेता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज से पैसे लेता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। Stock exchanges act as a clearinghouse for people from all walks of life to buy securities. Before long, everybody gets plenty of soap. At last, Futsy's success is complete. Soap City. The profit motive, which drove Futsy to accomplish so much, may bring out the evil as well as the good. Hello. Between us, $70% of country soap sales. You know, but why? Let's see what's cooking. I sell double. Let's raise and fix my prices. Terrific. We'll make these. Here you go. Quiet. Okay, Sam. It's a deal. Zooby Dooby. Futsy and Sam Sutco raise and fix prices, but the result is not what they expect. A competitor comes along with a good bar of soap that sells at a lower price. Since shoppers always seek maximum value, only the lower priced soap sells. While Futsy and Sam Sutco's profits turn to losses. 99 times out of 100, competition works. When it doesn't, the government steps in to prevent monopolistic attempts. ठीक है, यहाँ तक हमने ये वीडियो को देखा। रेस्ट ऑफ द वीडियो में लिंक सेंड करता हूँ, वहां पर आप देख लो। तो ये वीडियो में लास्ट में क्या बताया, लास्ट में ये बताया कि उसका जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहता है बट धीरे धीरे उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है और वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ में टाई अप कर लेता है, और टाई अप करके वो क्या करते हैं, सोप का प्राइस को फिक्स कर देते हैं ताकि कस्टमर बार्गेन न कर पाए। और ऐसा करने पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और इंटरवीन करके वो क्या करती है, उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में उनका प्राइस गिर जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलेगा, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। Now come to textbook. तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्टार्ट कहां से करें। तो वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड वन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर एक कोलैबोरेशन है आगे के 3-4 चैप्टर का। तो जब हम लोग चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एक बार कर लेंगे
तो चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, उसमें ज्यादा हमको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो पेज नंबर 14 पे चैप्टर नंबर 2 ये आपके सामने है। चैप्टर नंबर 2 का आप हेडिंग देखो तो लिखा है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, मतलब जो कंपनीज होती है, यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंपनी की बात कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और ये जो वर्ड है कॉर्पोरेट, तो ये कॉर्पोरेट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कंपनीज के लिए ही किया जाता है। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके पास पैसा कहां से आता है, ये इस चैप्टर में हमको देखना है। सोर्सेस, सोर्सेस क्या है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास पैसा कहां से आता है। तो अगर कल को जाकर के आपको कंपनी खुद की ओपन करनी है तो पैसा कहां से आएगा? तो फुल प्रूफ इसके अंदर हम लोग को यही सब जानना है, कैसे है, क्या है, क्या चीज, कौन सी सिक्योरिटीज कैसे होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग गो थ्रू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। पैसा ही सारे बिजनेस एक्टिविटीज का क्या है? मेन पॉइंट है, की है। नो बिजनेस एक्टिविटी कैन रन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। बिना पैसे के सपोर्ट के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी चलेगी नहीं। फाइनेंस इज नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज ऑफ प्रमोशन। अब ये कौन सा प्रमोशन की बात कर रहे हैं? जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है ना, उस प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन में लगता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के स्टेजेस बताएं। पहला क्या होता है? प्रमोशन। आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, दैट इज योर प्रमोशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसको रीअरेंज करना और उसको जो डेली ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, ये तीनों ही केसेस में, तीनों स्टेजेस में पैसे की जरूरत आपको हमेशा रहती है। मतलब बिजनेस चलाना है तो पैसा चाहिए। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन फाइनेंस। फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। और ये जो फाइनेंस, बिजनेस कैपिटल, इसको ऐसा कहा जाता है। मतलब हमको मालूम है बीके के अंदर भी जो पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस के लिए क्या होता है? वो बिजनेस के लिए वो होता है कैपिटल। बात यहाँ पर वही की गई है कि जो फाइनेंस नीडेड है, द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो पैसा चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्या बोलता है? कैपिटल बोलता है। ठीक है, तो ये वर्ड कैपिटल बीके से हमको पहले से पता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टेन कैपिटल फॉर एक्टिविटीज। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन होने दो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने दो, प्रॉफिट मोटिव होने दो, कोई भी सेक्टर का होने दो, सारे सेक्टर्स में आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। A joint stock company, which is a modern form of business organization and being a large undertaking, requires huge capital for business. अब हम लोग, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब कैसा है? ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो मॉडर्न है वो क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों जॉइंट स्टॉक कंपनी को मॉडर्न बोला गया? क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी रिसेंटली आप देखेंगे 300-400 साल से ही है, उससे पहले से नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में जब भी अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स आए थे तो एक कंपनी लेकर के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक टाइप का क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी था। तो उस समय जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तभी जॉइंट स्टॉक कंपनी नया नया अस्तित्व में आया था। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? लोगों का पैसा मिला करके शेयर क्रिएट किया जाता है, हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, और उससे बड़े बड़े अंडरटेकिंग्स, मतलब बिजनेस हाउसेस को बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो बताया, लार्ज अंडरटेकिंग्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस, और ये बिजनेस करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट में कैपिटल चाहिए। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन or capital formation
हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो ह्यूज कलेक्शन हो रहा है कैपिटल का, इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। आप कैपिटल क्रिएट कर रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस इन दी मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसी से जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज किया जाता है। ऑब्वियसली पैसा रहेगा तो ही आप कंपनी को मैनेज कर सकते हो। कैपिटल फॉर्मेशन is a process of collection of capital from various sources according to financial plan of the company। कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लान है उसके थ्रू हम लोग अलग अलग सोर्सेस से पैसा कलेक्ट करते हैं। ये सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं आपके बारे में बात करूं कि सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन 3-4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट होके निकलते हो तो आपका माइंड ऐसा है कि नहीं, मुझे हायर स्टडीज वगैरह नहीं करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है, अभी से स्टार्ट करना है। या कोई हो सकता है बोलेगा नहीं, मुझे एमबीए वगैरह करके फिर बिजनेस करना है। तो जब आप बिजनेस का स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है वो डिसाइड करने के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसा कहां से आएगा। तो आप खुद अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पैसा कहां से लाओ? सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आपके खुद के पास कितने पैसे हैं। तो अभी तक तो सारे पैसे आपने क्या किए? पैसे कहां से आते थे? पेरेंट्स के पास से जो आपको पॉकेट मनी मिलता था वही भी, और वो आपने उड़ा दिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके खुद के खर्चे होते थे। तो अगर कुछ सेव किया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो आप किससे मांगने जाओगे पैसे? तो सबसे पहला सोर्स आपका क्या होता है? आपके पेरेंट्स। माई डैड इज एटीएम, है ना। डैडी को जाके बोलेंगे, डैडी ऐसा ऐसा मैं बिजनेस का सोच रहा हूँ, कुछ सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, कुछ पैसा मिलेगा तो दे दो। मे बी डैड पूछ सकते हैं, अच्छा कितने कैपिटल की जरूरत है, कौन सा बिजनेस है, कितना रिटर्न मिल सकता है। डैड भी सोचेंगे कि इसका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके हिसाब से पैसा लगाएंगे। पहले आइडिया सुनेंगे, आपने आइडिया दिया, जैसे अभी अभी हमने वीडियो में देखा कि वो नया सोप केक बनाता है, तो आपने भी कुछ ऐसा आइडिया दिया कि हम कुछ बनाएंगे, कुछ स्पाइसेस बना सकते हैं, टी पाउडर बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी सेल करने के लिए आपने सोचा हुआ है। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज है। डैड ने बोला नहीं, इतना पैसा तो मैं नहीं दे सकता। तो सपोज डैड ने सपोर्ट किया और आपको 5 लाख रुपीज दे दिया। अब आपके पास 5 लाख रुपीज और नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है ना। बैंक से लोन लेने के पहले आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि कोई रिलेटिव से पैसा मिलेगा क्या, डैड के रेफरेंस में कोई है, डैड के कजन ब्रदर सिस्टर्स कोई होगा जो हमें लोन दे सकता है। क्यों? रिलेटिव से लोन लेने में फायदा क्या है? रिलेटिव से लोन लेने में हमें उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हो? आपके माइंड में चल रहा है कि कहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, पैसा मैं लूं उसका मुझे इंटरेस्ट वगैरह ना पे करना पड़े। आपके दिमाग में वो चल रहा है। और सबसे लास्ट पार्ट आता है बैंक लोन, जहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हमारे लेवल की बात हो गई। लेकिन आपको जायंट बिजनेस जब क्रिएट करना है, बहुत ह्यूज बिजनेस जब क्रिएट करना है, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज में डील करना पड़ता है ना। 1000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसा डीलिंग करना पड़ता है। और ऐसा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास से आना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाते हैं, जहां पर लोग मिलकर के किसी कंपनी को पैसा देते हैं और वो कंपनी लोगों के पैसे पे चलती है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। और शेयर के बाद कंपनी के पास फिर भी पैसे कम पड़े तो क्या कर सकते हैं? बैंक से लोन ले सकती है। तो क्या क्या सोर्सेस है वो हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर एक चार्ट आपके सामने आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड, A joint stock company collects huge funds through different sources। अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ रहा है उसके पास। These various sources of finance available to business may be explained with the following chart। तो ये चार्ट के माध्यम से आपको देखो बताया गया। पहला क्या है? ओन्ड कैपिटल, और अदर साइड में आपको क्या दिख रहा है? बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल, ओन्ड का मतलब होता है खुद का पैसा। खुद का पैसा, अच्छा खुद का पैसा मतलब कौन? खुद का, कंपनी का पैसा। तो कहां से आएगा? जो कंपनी मार्केट में शेयर सेल करके ले रही है। अब शेयर क्या होता है तो उसके बारे में आगे पूरा का पूरा डेफिनेशन है, फीचर्स है जो हमको बाय हार्ट करना है। अभी शॉर्ट में समझ लो शेयर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं
जिसके अंदर ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट है बट प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। तो मेरे माइंड में आइडिया है कि क्यों ना हम लोग ये जो आजकल एलईडी बल्ब बनता है उसका बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसका कैपिटल कितना लगेगा, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ सपोज 50 लाख रुपीज लगेगा। फैक्ट्री डालना है, प्रोसेसिंग करना है, वारंटी वगैरह देना पड़ेगा, वो सारी चीजें मिला करके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपीज का है। अब मेरे अकेले के पास अगर 50 लाख रुपीज नहीं है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगा भाई कि एक काम करो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। तो अगर मेरे फ्रेंड्स रेडी हो गए, 4-5 फ्रेंड रेडी हो गए, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। बट सपोज ये 50 लाख की बात कर रहा था, 50 लाख की जगह पे मेरे को कितना चाहिए, मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपीस। बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो इतना मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है कि मैं सबको पार्टनर बनाते फिरूं। आपने देखा है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर भी क्या है, पार्टनर्स की लिमिट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक लिमिटेड है। तो यहां पर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ज्यादा कैपिटल आ सके। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं और ये शेयर सर्टिफिकेट का एक प्राइस रखते हैं। सपोज एक शेयर सर्टिफिकेट में 10 रुपीज में दे रहा हूं। अब मैं जनरल पब्लिक को बोलूंगा कि अगर आपको मेरे कंपनी में इंटरेस्ट है, आपको मेरी कंपनी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मेरी कंपनी फ्यूचर में अच्छा कमा सकती है, तो आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ और उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, एक प्रूफ दूंगा कि आपकी कंपनी में आपने हमारी कंपनी में क्या लगाया, पैसा लगाया है। और ये प्रूफ क्या है, ये शेयर है, शेयर सर्टिफिकेट। तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कृष्णा है, कृष्णा बोलता है ठीक है मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। कितना पैसा लगाएगा कृष्णा, 10,000 रुपए लगाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो एक जो शेयर है वो 10 रुपए का है, तो आपके 10,000 के बदले में आपको 1,000 शेयर दूंगा। मेरी कंपनी में आपका कितना शेयर होगा, 1,000 होगा। कोई कोई दूसरा पर्सन होगा, ऋतिक है, ऋतिक बोलेगा सर मैं 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूं, तो मैं उसको 10,000 शेयर दूंगा, है ना। 10 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो ऋतिक का जो कंट्रोल है वो ज्यादा हो गया, वो 1 लाख रुपए लगा रहा है। तो ऐसे किसी का मन होता नहीं मैं 10 शेयर ही खरीदूंगा, तो ठीक है भाई जितना पैसा उतना खरीदो, 100 रुपए है तो 10 ही शेयर मिलेगा। कोई बोलेगा मैं 1,000 शेयर परचेस करना चाहता हूं, कोई बोलेगा मैं 500 शेयर परचेस करना चाहता हूं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से शेयर परचेस करेंगे और मैं सबको सर्टिफिकेट देता जाऊंगा। अब क्या होगा, 1 साल के बाद कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा जिसने जितना पैसा लगाया था उस रेशियो के हिसाब से उसको मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मतलब आपको अपना डिविडेंड शेयर के हिसाब से मिलेगा। तो ये जो शेयर होता है इसको हम कंपनी का ओन फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओन फंड। क्योंकि ये लोन नहीं लिया हुआ है, ये कंपनी के ओनर्स ने दिया है। किसने दिया है, ओनर ने। जो पैसा लगाता है शेयर में उसको कंपनी का क्या बोलते हैं, ओनर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है सेविंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी ओल्ड है और नया वेंचर स्टार्ट करना चाहती है, जैसे ऑलरेडी हमको मालूम है रिलायंस ग्रुप है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई नया रिलायंस का कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जाना चाहती है रियल स्टेट में, वो प्रॉपर्टीज का डीलिंग कराना चाहती है, प्रॉपर्टीज खरीद करके बेचना चाहती है। ठीक है। तो रिलायंस को रिलायंस प्रॉपर्टी करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो रिलायंस ऑलरेडी तो है, तो रिलायंस के पास क्या है, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग्स बोलते हैं। उसके पास पड़ा हुआ पहले का पैसा, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये उसका खुद का पैसा है, सेविंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो करंटली हम लोग इतना ही देखते हैं क्योंकि आगे हमको इसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट है, तो अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो फिलहाल आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब सेविंग ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो ये दो चीज क्लियर हो गई। पहले हमने क्या देखा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल में दो टाइप कौन से, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल नाम से क्या पता चलता है, बोरो किया, बोरो किया मतलब लोन है। ठीक है। तो लोन का पार्ट हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ओन में आ जाते हैं। तो ओन में हमने क्या देखा, शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है सेविंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो पैसे बचा बचा के रखे हैं वो उसकी सेविंग है, जिसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। और इसको नाम से जाना जाता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या इसको आप बोल सकते हो रिजर्व्स, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। जैसे बीके में आपने देखा जनरल रिजर्व आया था, तो ये जनरल रिजर्व वाली चीज है। ठीक है।
नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। अब ये जो शेयर है, शेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो अगर आपको ओनर बनना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इक्विटी शेयर खरीद लो या तो आप प्रेफरेंस शेयर परचेस कर लो। तो इसके बारे में समझेंगे हम कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ठीक है, तो आगे आएगा, तभी धीरे धीरे देखते हैं। तो ये दो टाइप के शेयर है जो आप परचेस कर सकते हो अगर आपको ओनर बनना है तो। ठीक है, अब यहां पर देखो बोरोड कैपिटल। अब आप एक कंपनी हो तो आपको लोन कौन देगा? तो लोन देने के लिए भी आप किसके पास जाओगे? पब्लिक के पास। पब्लिक से जब आप लोन दोगे तब आप उनको प्रूफ के तौर पर क्या देते हो? डिबेंचर। तो डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो आपने किससे लिया है? पब्लिक से लिया है। ठीक है, फिर पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक को आपने बोला जैसे आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो फिक्स डिपॉजिट, वैसे हमारे पास रखो। हमारे पास मतलब कहां पे? कंपनी के। तो ये पब्लिक डिपॉजिट हो गया। बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? सिमिलर टू डिबेंचर। क्या होगा हम देखेंगे आगे। एडीआर, जीडीआर, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में काम आता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बैंक्स, ये बैंक क्या है? बैंक लोन एक्चुअली वहां पर मिसिंग है, तो वहां पर क्या होना चाहिए था? बैंक लोन या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे भी लोन लिया जा सकता है। और लास्ट में क्या है? ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट ये हमने बीके में भी पढ़ा हुआ है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब भी आप सप्लायर से मतलब क्रेडिटर से गुड्स खरीदते हो और वो आपको कुछ मोहलत देता है, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, कि पैसा आप 2 महीने के बाद देना, तो ये जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ये भी एक टाइप का क्या है? शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। चार्ट वी हैव डन। तो देखो यहां पर क्या लिखा है? एक्सटर्नल सोर्स। अब हम लोग दूसरे टाइप में जा रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब पैसा बाहर से कहां से आ रहा है? तो वो कहां से आएगा? आउटसाइडर से आएगा। तो जो भी बोरोड कैपिटल आ रहा है कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे। और इंटरनल सोर्स क्या है? व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कौन सा आता है? सिर्फ देखो रिटेन्ड अर्निंग है, यही सिर्फ क्या होता है? इंटरनल सोर्स होता है। बाकी सारे सोर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि वो कंपनी के बाहर से आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, ऊपर जो था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, वो टाइप ऑफ कैपिटल देखा हमने, तो उसमें ओन्ड कैपिटल था, बोरोड कैपिटल था। ये दूसरा तरीका है उसको डिवाइड करने का। एक और तरीका कौन सा है? एक्सटर्नल सोर्स बोलो और इंटरनल सोर्स बोलो। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग को छोड़ के ये बाकी जो भी सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेस? शेयर दिखाई दे रहा है, डिवेंचर दिखाई दे रहा है, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे सोर्सेस क्या है? वो एक्सटर्नल है। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है? वो है इंटरनल सोर्स, क्योंकि वो कंपनी के अंदर से आए, कंपनी की सेविंग्स है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। अभी ओन कैपिटल का सोर्सेस जो ऊपर हमने चार्ट देखा उसी को हम लोग अभी क्या करें? एलेबोरेट करें। द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर। ओनर की मदद से जो पैसा आपको मिला है, ओनर कौन? शेयर होल्डर, इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल। ठीक है, उसको हम ओन कैपिटल बोलते। जो पैसा आपको ओनर के पास से मिला है, ऐसे लोग जो आपके कंपनी में रिस्क लेने को तैयार हैं, ओनरशिप के लिए आ रहे हैं, शेयर परचेस किया है, इसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स। और उनके द्वारा दिया गया जो पैसा है उसको हम बोलेंगे ओन कैपिटल। ठीक है, और ओनरशिप कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल भी बोल सकते हैं। द शेयर होल्डर परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। क्या बताया? शेयर होल्डर परचेज शेयर। तो जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो शेयर होल्डर क्या करता है? पैसा लगाता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। ये ओन कैपिटल का एक फॉर्म है, टाइप है। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग जो है वो भी कंपनी का खुद का पैसा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ओन कैपिटल बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको बताया था, सेविंग्स ऑफ द कंपनी, या आप रिजर्व बोल लो या प्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलो, सबका मीनिंग एक ही है। मतलब कंपनी ने जो पैसा जमा करके रखा है अपने लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। इट इज द री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो फिर से अपने ही बिजनेस में लगा रही है। ठीक है, तो री इन्वेस्टमेंट हो गया। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस।
और जहां पर हमने देखा था इंटरनल एक्सटर्नल, तो रिटेन अर्निंग क्या है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। जो ओन्ड कैपिटल होता है, अब इस पे ध्यान दो, फर्क क्या है। ओन्ड कैपिटल को परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। परमानेंट कैपिटल मतलब एक बार आपने पैसा लगा दिया तो आप ये पैसा वापस मांग सकते नहीं हो। अच्छा, कब तक नहीं मांग सकते, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसके भी दो अलग अलग पार्ट है, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर में टाइम फिक्स होता है। आपने सपोज प्रेफरेंस शेयर परचेस किया तो उसका टाइम हो सकता है 5 साल, हो सकता है 8 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, हो सकता है। तो तब तक आप अपने पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेफरेंस शेयर परचेस किया 8 ईयर्स के लिए, तो 8 साल तक आपका पैसा वहीं पे रहेगा, कहां पे, कंपनी में। कंपनी वाले आपको पैसा देंगे नहीं, कब देंगे, 8 साल के बाद। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर का हो गया। लेकिन इक्विटी शेयर का तो परमानेंट होता है, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी आपका खुद का जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि आप ओनर हो और आपने कंपनी को परमानेंट कैपिटल दिया है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए दे दिया है। ठीक है, एज इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये पैसा कब आपको वापस मिलेगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी, शटर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो तभी ये पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके लिए इसको क्या बोला गया, क्या बोला गया, परमानेंट कैपिटल। ठीक है, ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ओन्ड कैपिटल कौन से फॉर्म में होता है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में होता है। प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। स्टार्टिंग में कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको शेयर कैपिटल रेज करना होता है फॉर न्यू कंपनी। तो नए कंपनी को पैसा कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, कहां से, शेयर कैपिटल से। तो ये इसको बोलते हैं इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल, सबसे पहला सोर्स। आप कंपनी स्टार्ट करते हो और चाहोगे कि पहले ही लोन मिले, तो कोई आपको लोन देने वाला नहीं है जब तक आपके खुद के ओनर्स आपको पैसा नहीं देते। और ओनर्स आपको कैसे पैसा देंगे, ओनर्स बन जाएंगे शेयर होल्डर्स और आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। एक बार वो क्रिएट हो गया तो बाद में पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। ठीक है, तो जो इनिशियल सोर्स बोला गया है, फर्स्ट सोर्स बोला गया, वो क्या बोला गया है, शेयर, शेयर कैपिटल। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हो, बीच बीच में अगर आपको और पैसे की जरूरत पड़ी, आपको और शेयर इश्यू करना है तो भी आप कर सकते हो। मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार आप शेयर को इश्यू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन बिटवीन भी है, मतलब ये स्टार्टिंग में भी कैपिटल का रोल प्ले करता है और इन बिटवीन भी जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ये आपका हेल्प करेगा, मार्केट में से आपको पैसे दिलाएगा। However, retained earning cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital. लेकिन बोला जो सेविंग्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो सेविंग है उसको हम लोग स्टार्टिंग में यूज कर सकते नहीं है। ठीक है ना, उसको स्टार्टिंग में यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर बोला है इट कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स। किसको, रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल, स्टार्टिंग में आप उसको यूज नहीं कर सकते, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स। लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि खुद के पैसे पे कोई इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता नहीं है। ठीक है, व्हेन कंपनी रन्स इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। तो जब प्रॉफिटेबली वो कंपनी अपना बिजनेस चला रही है तो काफी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता है और ये ह्यूज प्रॉफिट वो सेव करके रखती है और फ्यूचर में उसको वही काम आता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन यहां तक हमने देखा। आगे देखो, प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन, जिसने बिजनेस को क्या किया, ऐसे व्यक्ति जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। अभी अभी जो हम लोग ने वीडियो देखा, तो जो पर्सन था जिसके दिमाग में वो आइडिया आया केक शॉप बनाने का और उसने कंपनी को स्टार्ट किया, वो क्या बन जाएगा, प्रमोटर। उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग में लोग उसके आइडिया से जुड़े, जैसे मैं बता रहा था अगर मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मैंने 7-8 लोगों को मिला करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो 6 से 7 लोग जो मेरे आइडिया के साथ में कनेक्टेड है वो क्या बन जाएंगे, प्रमोटर बन जाएंगे। मतलब कंपनी को स्टार्ट करने वाले को क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। ठीक है, तो जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं दे आर नोन एज प्रमोटर्स। प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। तो प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि पूरे कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, हमें कितने पैसे की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है,
1 करोड़ की जरूरत है, 10 करोड़ की जरूरत है, कितनी जरूरत है, ये जो टोटल कैपिटल है कौन बताएगा, ये प्रमोटर्स बताएंगे। ठीक है, तो प्रमोटर डिसाइड करते हैं। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ऐसे शेयर कैपिटल को ऑथराइज शेयर कैपिटल बोला जाता है। किसको बोला जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल? जितने पैसे की जरूरत है टोटल शेयर कैपिटल, वो कौन बता रहा है, प्रमोटर। और उन्होंने बोल दिया कि हमें सपोज 500 करोड़ रुपीस की जरूरत है, तो ये जो 500 करोड़ रुपीस है इसको बोला जाएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, इट इज स्टेटेड इन दी कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 11th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था और उसके अंदर एक कैपिटल क्लॉज था, और कैपिटल क्लॉज में आपको लिखना होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ये जो प्रमोटर ने डिसाइड किया अमाउंट, ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना होगा। कहां लिखना होगा, कैपिटल क्लॉज में। ठीक है, ऑफ द कंपनी। लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। ठीक है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यहां तक इंट्रोडक्शन में अगर किसी को कुछ मिस हुआ हो, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा, यू कैन आस्क, नो डाउट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो शेयर क्या होता है? शेयर, the term share is defined by section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013। अब ये डेफिनेशन हमको क्या करना है, बाय हार्ट कर देना है। शेयर होता क्या है, और ये डेफिनेशन किसने दिया है, ये कंपनीज एक्ट 2013, जो न्यू कंपनीज एक्ट आया 2013 का, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2 में सब सेक्शन 84 में। तो क्या डेफिनेशन है, अ शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ठीक है, और शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब शेयर होता है। ये क्या बात होगी, एक ऐसा डेफिनेशन दे रहे हैं, शेयर का मतलब शेयर होता है। तो यहां पर कौन से शेयर की बात करें, ये जो यहां पर लिखा हुआ है शेयर, ये शेयर मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रपोर्शन। क्या बोल रहे हैं, प्रपोर्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये शेयर का मतलब होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, भाग। किसका हिस्सा है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है। एग्जाम्पल, अभी अभी हमने बात की कि जैसे पूरे कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल हमने डिसाइड किया 500 करोड़ रुपीस। 500 करोड़ रुपीस ये क्या है, टोटल शेयर कैपिटल। अच्छा, ये 500 करोड़ शेयर कैपिटल बना किससे है, छोटे छोटे शेयर से। तो जो मिनिमम वैल्यू का शेयर है वो कितने का है, सपोज वो मैंने रखा है 10 रुपए का, तो एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। एक शेयर 10 रुपए का है। तो ये जो उसका छोटा सा हिस्सा है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो मैंने 10 रुपए का ही रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, हिस्सा बोलेंगे, प्रपोर्शन बोले। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। अ शेयर मीन्स अ शेयर। शेयर वो है जो एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पूरे के पूरे शेयर कैपिटल का छोटा हिस्सा है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक, और इसके अंदर स्टॉक भी आ गया। तो स्टॉक क्या होता है, तो जैसे इंडियन मार्केट में हम जिसको शेयर बोलते हैं, फॉरेन मार्केट में उसको स्टॉक बोला जाता है। आपने देखा भी, सुना भी होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट को क्या बोला जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक ये वर्ड क्या है, ये शेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेक्स नहीं जाएंगे, आप दोनों को वन एंड सेम समझो कि जहां पर जिसको शेयर बोला जाता है, फॉरेन मार्केट में ज्यादातर उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। तो शेयर का मतलब स्टॉक से भी हो गया, इट इंक्लूड स्टॉक। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर क्या है, एक छोटा सा यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए 10 लाख रुपीस।
और 10 लाख रुपीस लाने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा एक शेयर कितने का हो, 10 रुपीस का। ठीक है, तो मुझको कितना शेयर मार्केट में इशू करना पड़ेगा? तो मार्केट में मैं अगर 1 लाख शेयर इशू करता हूं, कितना? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख शेयर। तो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 1 लाख शेयर अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये क्या है? ये है शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, और ये जो 10 रुपीज है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, उसका छोटा सा हिस्सा, क्योंकि मैंने एक शेयर 10 रुपए का रखा हो। अगर मैं एक शेयर 1 रुपए का रखता तो सबसे छोटा हिस्सा क्या होता? 1 रुपीज, 1 रुपए का शेयर। ठीक है, अगर मैं 5 रुपीज का रखूं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तो एक शेयर कितने का हो जाएगा? 5 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने 10 रुपीज का एक यूनिट रखा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला गया स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसके लिए यहां पर देखो क्या लिखा है? शेयर इज यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। तो 1 लाख शेयर और हर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल जो शेयर कैपिटल है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड है किसमें? डिवाइडेड है 1 लाख शेयर में। तो आई थिंक ये क्लियर है, सबको अच्छे से समझ में आ गया कि जो छोटा सा यूनिट है वो कितने का है? 10 रुपीज का है। और हमारा जो 10 लाख रुपए है वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। कितने शेयर्स में डिवाइडेड है? 1 लाख शेयर्स में। और ये शेयर हम बाहर मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, जो इसे खरीदेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ओनर, शेयर होल्डर बन जाएगा। The total capital of the company is divided into small parts and each part is called a share। ये जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ है 10-10 रुपए में, तो हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। तो वो जो 10 रुपए का एग्जांपल मैंने दिया था, वो 10 रुपए क्या है? उसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसका वैल्यू 1 रुपीज रखता तो उसका फेस वैल्यू क्या होता? 1 रुपीज होता। शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या है? सबसे छोटा यूनिट है। इट फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। अच्छा, इससे फायदा क्या हो रहा है? इट फैसिलिटेट पब्लिक, पब्लिक को क्या करता है? फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है ये? इट फैसिलिटेट पब्लिक टू परचेस इट इन स्मॉलर अमाउंट। अभी देखो, एक साथ अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई तू 10 लाख रुपए दे दे, तो मुश्किल होगा उसको देने को। लेकिन अगर मैं आप 10-10 रुपीज डिमांड करूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जिसके पास जैसे कैपेसिटी है, किसी के पास 100 रुपीज है तो वो 100 देगा, किसी के पास 1000 है तो वो 1000 देगा। तो ये मैंने इसके लिए छोटा रखा है, 10 रुपए का रखा है, कि हर एक पर्सन, मतलब जो कॉमन मैन है, इसको क्या कर सके? परचेस कर सके। ठीक है, मैं 10 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति से नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं 1 लाख लोगों से 10-10 रुपए तो ले सकता हूं। और इस तरीके से मेरे पास कितना क्रिएट हो जाएगा? मेरे पास 10 लाख रुपए क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर एज इज। आपको जितना शेयर खरीदना है आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप क्या हो? इन्वेस्टर हो। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ का शेयर खरीदो, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का शेयर करो। डिपेंड करता है कि शेयर कैपिटल कितना है। ठीक है, तो आपका विषय, जितना खरीदना उतना खरीदो। अ पर्सन हु परचेसेस शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। जो खरीदता है शेयर उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, और अदर लैंग्वेज में उसको मेंबर भी बोला जाता है। क्यों मेंबर? कि जैसे ही आपने शेयर खरीदा आप कंपनी के क्या बन गए? मेंबर बन गए। ठीक है, तो हियर वी हैव फिनिश विथ शेयर। शेयर का इंट्रोडक्शन हमने फिनिश किया। फीचर्स पे जाने के पहले किसी का कुछ डाउट है? लेट मी नो। चलो फटाफट कमेंट करो। इफ यू अंडरस्टूड राइट यस, और नहीं समझा है तो डाउट क्या है, आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो। माइक अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। अंडरस्टूड, थैंक यू हर्ष। ओके, चलो ज्यादातर आप लोगों को समझ में आया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी हम फीचर्स देख रहे हैं, और किसका फीचर्स देख रहे हैं? देखो, फीचर्स ऑफ शेयर। शेयर का क्या फीचर्स है? तो शेयर के फीचर्स पे जाने के पहले मैं आपके साथ में एक पीपीटी शेयर करता हूं। तो ये सभी को दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? ओके। तो इस पे चैप्टर 1 लिखा हुआ है, ये ओल्ड पीपीटी है बट इसको समझो, ठीक है? इसमें कुछ पार्ट है जो हमारे काम का है। अभी देखो, जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, तो उसको रिक्वायरमेंट है कैपिटल का। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा हो सकता है? लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है? अच्छा, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आप कहां पर यूज करते हो? आप फिक्स्ड एसेट परचेस करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, या आप मशीनरी फर्नीचर वगैरह परचेस कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल कहाँ होता है? आप वेजेस वगैरह देना है, सैलरी देना है एम्प्लॉइज को, ठीक है, या आपको स्टॉक वगैरह परचेस करना है, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया। कैपिटल मैं क्विकली जा रहा हूं क्योंकि ये सब एक्सप्लेन हो चुका है। तो सपोज एक कंपनी है, जैसे कंपनी ऊपर मैंने बताई है अग्रवाल नेक्स्ट कंपनी लिमिटेड, ठीक है? और जो चार्ट हमने देखा था उसके अंदर क्या था? ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड के अंदर इश्यू ऑफ शेयर, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और बोरोड फंड के अंदर आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, बैंक क्रेडिट, एडीआर जीडीआर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या ट्रेड क्रेडिट, ठीक है? तो ये सारी चीजें आती है, हमने देखा चार्ट के अंदर। डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सारी बातें हमने देख ली। तो इंटरनल सोर्स जैसे मैंने बताया कि सिर्फ जो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है या रिटेन अर्निंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में बाकी सब चीजें आ गई, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, वो सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नल इन नेचर, ठीक है? व्हाट इज शेयर? तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। शेयर कैपिटल क्या है? डेफिनेशन हमने देख लिया। फीचर्स, तो पहला चीज, टोटल शेयर कैपिटल में से एक उसका छोटा सा पार्ट, जैसे मैंने बताया 10 रुपीज का, ठीक है? तो वो जो 10 रुपीज का हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर शेयर का डिस्कशन चल रहा है। व्हाट इज अ शेयर? तो जो टोटल शेयर कैपिटल आपको यहाँ पर दिख रहा है उसमें से एक छोटा सा पार्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं, ठीक है? अब उसका क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब मैं मेरे टर्म में उसको बोलता हूं थोबड़ा प्राइस। हमें थोबड़ा पता है, हमारा फेस, तो फेस का वैल्यू। वैसे शेयर का जो फेस होता है, मतलब जब आपके पास सामने सर्टिफिकेट आएगा ना तो उसके ऊपर लिखा होता है, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा है प्रिंटेड प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? एमआरपी, सपोज आप परचेस कर रहे हैं पार्ले जी बिस्किट परचेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा है 5 रुपीज, तो ये जो है वो उसका एमआरपी है। वैसे जब आप कोई शेयर परचेस करते हो ना तो उसके ऊपर एक प्राइस लिखा होता है, जो प्राइस उस पर लिखा है वो क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है? फेस वैल्यू बोला जाता है। दूसरा प्राइस है इश्यू वैल्यू। दूसरा प्राइस क्या है? इश्यू वैल्यू। इश्यू वैल्यू क्या होता है? जैसे मैंने बताया एमआरपी,
अब जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एमआरपी पे ही बिके, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को एमआरपी से कम या ज्यादा पे बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉटल वाटर जो होता है आप वो लेने जाएंगे, यहां पर आप बॉटल वाटर लेने जाएंगे तो आपको 20-22 रुपए में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेम वाटर बॉटल आप सिनेमा हॉल में जाते हैं या आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, वहां पर आप बोलोगे तो आपको एमआरपी से ज्यादा प्राइस लगाकर बेचेगा, जबकि ये क्या है, इलीगल है। फिर आप ऐसी जगह पे चले जाए जैसे डीमार्ट है, तो डीमार्ट में जो एमआरपी लिखा रहता है उससे कम प्राइस में आपको मिलता है, ठीक है। तो जो एमआरपी है उससे प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, उससे प्राइस कम भी हो सकता है। तो वैसे यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, थोबड़ा प्राइस, जो शेयर सर्टिफिकेट के फेस पे लिखा हुआ है। सपोज एक शेयर लिखा हुआ है 10 रुपीज का, ठीक है। तो अगर 10 रुपीज का शेयर मैं आपको 10 रुपीज में दूं सेम, तो उसको बोलेंगे एट पार, इशूड एट पार, तो उसका इश्यू वैल्यू हो गया, ठीक है। उसका क्या हो गया, इश्यू वैल्यू। देखो फेस वैल्यू अगर 10 रुपए का है और मैंने उसको 10 रुपए में इशू किया तो उसको क्या बोलेंगे, इशूड एट पार। और अगर 10 रुपए से ज्यादा में मैंने बेचा, मतलब मैंने उसको बेचा 12 में, तो इसको क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम। मैंने कितना प्रीमियम लिया, मैंने 2 रुपीज का प्रीमियम लिया। 10 रुपए का शेयर मैंने 12 रुपए में बेचा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इशूड एट प्रीमियम। वापस एक बार बताता हूं, लिसन केयरफुली, पुनः एकदा आएगा, फिर से सुनो। दो प्राइस है, एक है फेस वैल्यू जो उसके फेस पे लिखा हुआ है, किसके फेस पे, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा प्राइस इश्यू प्राइस, आप कितने में उसे बेच रहे हो, डिपेंड करता है। आप उससे कम में बेच सकते हो, उसी प्राइस पे बेच सकते हो, उससे ज्यादा में बेच सकते हो। जब आप सेम प्राइस पे बेचते हो, मतलब फेस वैल्यू जब सेम होगा इश्यू प्राइस पे, तो उसको बोलेंगे इशूड एट पार। जब फेस वैल्यू 10 का है और आप उसको सेल कर रहे हो 12 में, तो इसको क्या बोलेंगे, इशूड एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम, 2 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट। 10 का शेयर था, आप उसको 8 में बेच रहे हो, तो आपने यहां पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये दो प्राइस हो गए। तो शेयर को आप ज्यादा में भी बेच सकते हो, सेम प्राइस पे बेच सकते हो, कम में भी बेच सकते हो। तो ये उसका फीचर है। आगे बढ़ेंगे। ओनरशिप, जब आप शेयर खरीदते हो तो आप क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। तो टोटल शेयर कैपिटल में से आपका भी एक हिस्सा होता है। सपोज आपने एक भी शेयर परचेस किया, ठीक है, आपने ऑनलाइन बैठ के एक भी शेयर परचेस किया, तो भी आप क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। आप शेयर खरीदते हो तो आपको ओनरशिप राइट मिलता है। ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार, आप कंपनी के मालिक बन गए। लेकिन आप अकेले मालिक नहीं हो, जितने लोगों ने शेयर खरीदा है पूरा ग्रुप मिलके क्या है, ओनर है, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यू आर नॉट द सिंगल ओनर, आपका ओनरशिप डिवाइडेड है। जितने लोग ने शेयर परचेस किया है सबके सब क्या बनेंगे, ओनर बनेंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी मच क्लियर। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 देखो, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि शेयर सर्टिफिकेट जब आपको मिलता था, पहले मिलता था, आज के जमाने में तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बट मैंने ओरिजिनल देखा हुआ और मेरे पास भी शेयर्स हैं। कभी मौका मिलेगा, हमारा लॉकडाउन फिनिश हो जाता है तो मैं आपको शो करता हूं कि शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली दिखने में कैसा होता है। आज की तारीख में सब क्या हो गया है, सब इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो पहले शेयर ऐसा होता था, तो सबसे पहले क्या लिखा होता था, कंपनी का नाम लिखा होता था, उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखा होता था, ठीक है। कंपनी के एड्रेस के बाद उसका फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और एक बड़ा सा शेयर सर्टिफिकेट ऐसा वहां पर लिखा होता था, ओके। नेक्स्ट लिखा होता है, देखो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द पर्सन्स नेम्ड इन दिस सर्टिफिकेट आर द रजिस्टर्ड होल्डर्स ऑफ द विद इन मेंशन शेयर। मतलब क्या है, इस शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा है वे लोग रजिस्टर्ड होल्डर हैं। रजिस्टर्ड होल्डर है मतलब वे लोग ओनर हैं, ओके। और क्या लिखा है, बियरिंग द डिस्टिंक्टिव नंबर, ये शेयर के ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर है, मतलब हर एक शेयर का अलग अलग नंबर है। अगर इस सर्टिफिकेट के अंदर 100 शेयर हैं तो 100 शेयर का अलग अलग नंबर होगा,
here in specified in the above company subject to the memorandum and article of association। और ये जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत इशू किया गया, मतलब ये लीगल है, ठीक है, ऑफ द कंपनी, एंड दैट द अमाउंट एंडोर्स्ड हियर ऑन हैज बीन पेड अपॉन ईच सच शेयर। और ये जो पैसा हमको मिला है, कौन बोल रहा है ऐसा? कंपनी बोल रही है, ये जो पैसा हमको मिला है ये शेयर होल्डर ने हमें हर एक शेयर के लिए दिया है, ठीक है, तो ऐसा लिखा होता है। इसके बाद अब जो मैं आपको फेस वैल्यू की बात कर रहा था, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर ईच ऑफ रुपीज। अब ये जो लिखा है 10, ये जो लिखा है ना, इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। अब हो सकता है आपने इसको 10 की जगह 12 में इशू किया हो, 15 में इशू किया हो, 20 में इशू किया हो, डिपेंड करता है, वो इशू वैल्यू अलग है, बट जो इस पे लिखा था वो प्राइस कितना है? वो प्राइस है 10 रुपीज। और ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू, ठीक है। अमाउंट पेड अप पर शेयर। अब क्या होता है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 10 रुपए का शेयर है और आपने शेयर परचेस किया। सपोज मृण्मय है और मृण्मय हमसे शेयर परचेस करना चाहता है, हमने उसको शेयर दिया। अब मृण्मय ने 10 रुपए का शेयर खरीदा, तो मैं एक साथ उसको पैसा नहीं मांगूंगा, मैं बोलूंगा मृण्मय एक काम करो, आप स्टार्टिंग में ना 5 रुपए ही दे दो, ठीक है, और बाकी के 5 रुपए कब देना? जब मैं बाद में मांगूंगा तब देने का, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो उसने मुझे पे किया है, जितना मैंने मांगा, उसको हम बोलेंगे पेड अप वैल्यू। क्या बोलेंगे? पेड अप वैल्यू। तो 10 रुपए का शेयर था, लेकिन मैंने अभी तक उससे 5 रुपया मांगा, तो उसने 5 रुपए दिया, तो इस शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? 5 रुपीज। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। शेयर है कितने का? 10 रुपए का। मैंने मांगा कितना? 5 रुपए। क्यों 5 रुपए नहीं मांगा अभी? बाकी जरूरत नहीं है, क्यों एक्स्ट्रा लेकर के मैं मेरे पास रखूं? बाद में जब पैसा लगेगा तब मैं ले लूंगा। शेयर होल्डर कहां भागे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 रुपीज है, ये अभी अभी उसने मुझे पे किया है, इसको हम बोलेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ दी शेयर। इसके बाद लिखा होता है डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है। अब देखो डिस्टिंक्टिव नंबर कहां से लिखा है? 2001 से 2001 से 2100, मतलब जो इसमें कितने शेयर है? इसमें 100 शेयर है, और फर्स्ट शेयर का नंबर है 2001, सेकंड शेयर का क्या होगा? 2002, ऐसे 2003, 2004, 2005, ऐसे 100 शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा 2001 से 2100, ठीक है। तो हर एक शेयर का अपना अलग नंबर होता है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे आपका करेंसी नोट, आप अपना नोट उठा के देख लो, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? हर एक नोट का, आपका जो करेंसी नोट है 100 रुपीज का हो या 1000 का तो बंद हो गया, 2000 रुपीज का हो, 500 रुपीज का हो, है ना, या 20 रुपीज का, 10 रुपीज का होने दो, 10 रुपए का भी नोट होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? उसका अपना एक नंबर होगा, और वो नंबर किसी और नोट से मैच करेगा नहीं, मैच किया तो डुप्लीकेट है। ऐसे यहां पर क्या होता है? डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है। तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट का, सॉरी सर्टिफिकेट का नहीं, हर एक शेयर का अपना क्या होता है? एक अलग नंबर होता है, ठीक है। तो ऐसे इस सर्टिफिकेट में कितने शेयर हैं? इस सर्टिफिकेट में 100 शेयर है। इस सर्टिफिकेट में कितने शेयर है? 100 शेयर है, ठीक है, और हर एक का अलग अलग नंबर है। नेक्स्ट, रजिस्टर फोलियो नंबर। रजिस्टर फोलियो नंबर क्या होता है? रजिस्टर फोलियो नंबर मतलब ये जो सर्टिफिकेट है कहां रजिस्टर है, तो हमने कहीं ना कहीं इसका रजिस्ट्रेशन किया होगा, लिखा होगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर फोलियो नंबर है 420, ये मैंने ऐसे लिख दिया एग्जांपल के तौर पे। फिर है नेम ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का नाम लिखा होता है। अभी इसमें शेयर होल्डर का नाम है बाबूराव गणपतराव आपटे, ये हमारा शेयर होल्डर है। और शेयर सर्टिफिकेट का क्या होगा? नंबर होगा। हर एक शेयर सर्टिफिकेट का अपना क्या होता है? नंबर। जैसे देखो आपको 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड सर्टिफिकेट मिला था, तो बोर्ड शेयर सर्टिफिकेट का ऊपर क्या रहता है? उसका नंबर होता है, ठीक है। तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक सेपरेट नंबर होता है, इसमें मैंने दिया है ट्रिपल टकले 1212, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा नंबर है। पहले ऐसा होता था, आज से 8-10 साल पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए आता था, आप फॉर्मेट ड्रॉ करते थे, बट अभी आता नहीं है, वो सिलेबस से निकाल दिया गया, तो तभी ये काफी काम का होता था। नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हैं? तो एक रहता है यहाँ
आपको नंबर्स में लिखना होता है 100 और एक वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो वर्ड्स में लिख दिया 100 और नंबर्स में लिख दिया 100। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डेट लिखा होता है, कौन से डेट पे इसको इश्यू किया गया था। तो दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन 10th of July 2011 अंडर इंडियन कंपनीज। अभी चेंज हो गया, अभी क्या लिखेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट उसके हिसाब से इशू किया गया, उसका डेट, कौन से डेट पे इशू किया गया वो लिखा रहेगा। फिर उस पर लगेगा रेवेन्यू स्टैंप। तो रेवेन्यू स्टैंप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जितने वैल्यू का शेयर रहेगा, अगर बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो रेवेन्यू स्टैंप भी ज्यादा वैल्यू का लगता है, ठीक है। तो रेवेन्यू स्टैंप का वैल्यू डिपेंड करता है शेयर सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है। तो रेवेन्यू स्टैंप लगेगा, फिर कंपनी का सील आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्टैंप मारा हुआ है, तो कंपनी का जो कॉमन सील होता है 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है कॉमन सील, तो ये कॉमन सील उसके ऊपर लगेगा। हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कंपनी का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर कंपनी का सील लगाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद शेयर पर्सन की साइन रहेगी, ठीक है। फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा उसकी साइन हो सकती है, और एक सेक्रेटरी की। मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए और एक ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी, बराबर है। तो सेक्रेटरी की साइन होती है। ये साइन जब मैंने लिया था, ये बराक ओबामा की साइन है, तो वहां से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ये आपको पता चल गया पूरा का पूरा कि शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखता था। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया आपके लिए ताकि आप समझ सको कि शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअल टर्म में दिखाई कैसा देता था। तो ऐसा पूरा का पूरा शेयर सर्टिफिकेट दिखाई देता था। ओके, नंबर 5, फिफ्थ क्या है, ट्रांसफरेबल। शेयर क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल इन द सेंस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर करने का मतलब बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है। मुझे शेयर बेचना है, क्या मैं बेच सकता हूं, आंसर इज यस, आप अपना शेयर बेच सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी 2 टाइप है। इसमें अगर आपका शेयर इक्विटी शेयर है, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आप जब चाहे तब अपना शेयर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो किसी और को दे सकते हो, पैसे के लिए दे सकते हो, गिफ्ट में देना है गिफ्ट में दे दो, आपकी मर्जी। आप ओनर हो, आपने जब शेयर ट्रांसफर कर दिया आपका ओनरशिप चला जाएगा और जिसने खरीदा उसका ओनरशिप आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। शेयर क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। आप अपने शेयर को सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। ओके, राइट्स। अच्छा, जब आप शेयर खरीदते हो तो क्या शेयर के साथ में आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। और शेयर होल्डर के ऐसे बहुत सारे अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं शेयर होल्डर के, राइट्स क्या होते हैं, जैसे जैसे आप शेयर होल्डर बन गए तो जो भी मीटिंग होगी, कौन सी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आपको इनवाइट किया जाएगा। कैसे इनवाइट किया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, तो मीटिंग का नोटिस आपको मिलेगा, ठीक है। और आप उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो मैनेजमेंट में। जब भी कंपनी डिविडेंड देगी आपको डिविडेंड लेने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं शेयर होल्डर के। मीटिंग में बोलने का अधिकार है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार है। आप कंपनी में जाके बोल सकते हो कि भाई मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, तो वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा देंगे। आप बोलोगे नहीं मेरे को जेरोक्स करके दो, जेरोक्स करके चाहिए, तो एक नॉमिनल जो भी जेरोक्स का चार्जेस रहता है 10-20 पेज का जो भी चार्जेस रहेगा वो पे करके आप क्या कर सकते हो, वहां से जेरोक्स वगैरह ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं जब आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। कब बनोगे शेयर होल्डर, जब आप शेयर परचेस करोगे तब। तो आपको शेयर परचेस करने पे मिलता क्या है, इनकम मिलता है, और इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। साल भर में जो कंपनी ने कमाया है उसका छोटा सा हिस्सा आपको मिलता है। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपने कितना पैसा लगाया था उसके हिसाब से आपको मिलेगा, और यही आपका इनकम है। तो आपका इनकम क्या है, डिविडेंड, ठीक है। काइंड्स, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं शेयर, काइंड्स में देखते हैं यहाँ पर। तो इक्विटी शेयर यहां पर है, प्रेफरेंस शेयर है, बोनस शेयर होता है, उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। बोनस शेयर क्या होता है, कैसा होता है, आगे पूरा उसके ऊपर शॉर्ट नोट है। फिर होता है डेफर्ड शेयर, ठीक है। तो डेफर्ड शेयर प्राइवेट कंपनीज इशू करती है। तो ये काइंड देख लिया हमने, कौन कौन से काइंड, 4 काइंड। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा बोनस शेयर, चौथा डेफर्ड शेयर। तो डेफर्ड शेयर अभी आपके पोर्शन में नहीं है, तो आपको ज्यादातर किसके बारे में चिंता करनी है, इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, और बोनस शेयर तो कुछ खास नहीं है।
वो इक्विटी शेयर जैसा ही होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 9, मोड ऑफ पेमेंट, पैसा कैसे देंगे। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, और मृण्मय है, मृण्मय को मैंने बोला भाई 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आप अभी हमें पूरे पैसे मत दो, तो पहले आप हमें 3 रुपए दे दो। तो ये जो 3 रुपए होते हैं, ये आपने हमें कब दिए हैं, जब आपने अप्लाई किया शेयर के लिए, ठीक है। सपोज सचिन है, सचिन मेरे कंपनी का शेयर परचेस करना चाहता है, मैंने शेयर इशू किया, सचिन शेयर परचेस करना चाहता है, तो मैंने बोला भाई स्टार्टिंग में मेरे को 3 रुपए चाहिए, अगर आप अप्लाई करने के टाइम दे रहे हो तो वो अप्लाई करने के टाइम पे पैसा दे रहा है, तो मैंने 3 रुपए ले लिए, ठीक है। और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि मुझे उसे शेयर देने हैं, तो मैं उसे 2 रुपए और मांगूंगा, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। तो पहला हो गया एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मतलब जब आपने अप्लाई किया तभी आपने पे किया। क्या अप्लाई किया, आपने बोला सर मुझे शेयर चाहिए, मैंने बोला ठीक है, अभी आप एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट कर दो। जैसे आप देखो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो एडमिशन लेने जाते हो तो फॉर्म क्या फ्री में मिलता है आपको, आपको 100 रुपीज 200 रुपीज फॉर्म का देना पड़ता है ना। तो वैसे यहाँ पर एप्लीकेशन मनी है, तो ये एप्लीकेशन मनी क्या काउंट होगा, वो फेस वैल्यू का हिस्सा काउंट होगा कि आपसे हम 3 रुपए ले लेंगे। दूसरा, जब कंफर्म हो गया कि हाँ हम आपको शेयर दे रहे हैं, तो आपको 2 रुपए और मैं मांग रहा हूं कि 3 और 2 टोटल मेरे पास कितना आ गया, अभी 5 रुपीज आ गया। फिर बाद में मुझको लगता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मुझे और पैसे की जरूरत है, तो मैंने और 2 रुपए मंगा लिए, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। तो पहले एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, फिर अलॉटमेंट मनी, मेरा कंफर्म हो गया मैं शेयर दे रहा हूं, तो मैं कितना चार्ज कर रहा हूं, 2 रुपीज। फिर मुझे लग रहा है और पैसे की जरूरत है, तो मैंने और 2 रुपए मंगा लिए। फिर जब मैं और पैसे मंगाऊंगा 2-3 साल के बाद, फिर मुझे लगा कि और पैसे चाहिए, तो और 2 रुपए, और लास्ट में फाइनली 1 रुपए और मंगा लिया। तो ऐसे करते करते मैंने पूरे के पूरे 10 रुपए आपसे ले लिए। तो ये मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, हो सकता है, ऐसा होता है, जरूरी नहीं है। आज की तारीख में क्या होता है, कोई इतना रुकता नहीं है, सारे पैसे एक साथ ले लिए जाते हैं। हाँ, सब ऑनलाइन सिस्टम होता है। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो कम शेयर खरीदो, ज्यादा शेयर खरीद के क्या मतलब है आपके पास, है कि नहीं। तो अब ये सब इतना सारा फॉर्मेट होता नहीं है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पहले हुआ करता था, लेकिन सिलेबस में अभी भी है। क्या करें, क्योंकि अभी भी कुछ कंपनीज है जो इलेक्ट्रॉनिक परचेज सेल नहीं करती, उनको अलाउ किया गया नहीं है। तो उनके लिए क्या है यहाँ पर, उनके लिए ये फॉर्मेट रखा है मोड ऑफ पेमेंट कि आप एप्लीकेशन मनी या थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हो। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, शेयर होल्डर के लिए इजी हो जाता है, उसको स्टार्टिंग में 10 रुपए देने नहीं। अभी ऐसा शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर खरीदा है, तो उसको स्टार्टिंग में कितना देना पड़ेगा, 3000 देना पड़ेगा, फिर कितना देगा 2000, फिर 2000, फिर 2000, और लास्ट में 1000, तो उसको इंस्टॉलमेंट मिल गया ना। नेक्स्ट, पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू क्या होता है, पेड अप वैल्यू मतलब अभी अभी जो आपको बताया, जितना पैसा आपने भरा है उसको पेड अप वैल्यू बोलते हैं। तो शेयर 10 रुपए का है और आपने भरा ही यहाँ पर कम पैसा भरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप वैल्यू। जैसे देखो अभी यहाँ पर शायद बीच में वो विंडो आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, कंपनी ने 10 रुपए मंगाए, कितने मंगाए, 10 रुपए, और आपने पे कितना किया है, 10 रुपए, तो उसको बोलेंगे फुल्ली पेड। लेकिन अगर आपने 5 ही रुपया पे किया है, तो उसको पार्टली पेड बोला जाएगा, ठीक है। अभी आप लेफ्ट साइड देखोगे तो वहां पर क्या लिखा है कि जब आप शेयर परचेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। और राइट हैंड साइड क्या दिखा है, आपको बोला गया था 10 रुपए भरने के लिए, लेकिन आपने 5 रुपए भरा, तो कंपनी आपको बाकी का पैसा मांगेगी, बार बार मांगेगी, और जब आप मांगने के बाद भी नहीं दोगे तो आपसे शेयर छीन लेगी, और उसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। शेयर का फोरफीट होना, फोरफीट ऑफ शेयर, ठीक है। तो जब आप कंपनी के मांगने के बावजूद पैसे नहीं देते हो, तो कंपनी आपसे आपका शेयर छीन लेती है, जिसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर, मतलब शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा पैसा भर दिया तो क्या होगा, आपको शेयर होल्डर के सारे अधिकार मिलेंगे, और पैसा नहीं भरा तो शेयर छीन लेंगे और आप तब शेयर होल्डर रहोगे नहीं। तो ये कंपैरिजन दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको शेयर होल्डर के कोई राइट नहीं मिलेंगे। तो
यहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ शेयर देख लिया। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, तो वी विल डू वन थिंग। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, इतना ही आज हम पढ़ेंगे।